Should we go ahead and start with a new session then? Yes, sir. All right. Okay, so I plan to start today with filters, and let's see how does it come out. And कौन है ये म्यूट कर लेना भी जिसका भी आवाज आ रही है बहुत. So let's start with the filters. I said, like, the filters are the ones that gives different kind of an effects that might be helping other effects to come out. So we'll begin with something called filter gallery. These are the filter galleries out there. Once you go to the filter gallery, what you can see is are in fact there are like artistic, brush strokes, distorts, sketch, stylize, and texture. It will be very difficult for me to actually give details on each one of them, but of course I probably be covering the most popular ones and the ones like you can get the best results possible. As far like the name's artistic is concerned, it will convert the normal images or normal layouts into an artistic impressions. So whatever the people do hands-on artistry, that might be about different kind of, the artist only knows about this. There are like multiple techniques like colored pencil, cutout, dry brush, full grain. These are the techniques. Once you get into the any kind of a fine arts of painting, or probably take up something in painting in particular, then you will come across these terms. These are the terms which normally confined to the manual artistic level. So people use these techniques using different kind of pens or brushes or equipment in order to bring in these kind of effects onto the paper or a canvas. But of course, since we are working in Photoshop, we might be attaining these results using Photoshop. So let's say start with a colored pencil. So this is a simple image. And once I applied a colored pencil on this, then I can see like how does it come out. So like this thing will become this. So these grays and whatever it is coming based on these two foreground and background colors. And the another thing that you need to keep in mind that whenever you apply such filters, it is always a good idea to go to the filter and then use the convert to smart filter before applying the final filter setting. So once I do this and I go to the filter gallery, and this is what I do, the colored pencil, I come across these gray effects. In case if I change these foregrounds and backgrounds, let's assume if I changes these two into the yellow and the reds, and then if I go to use these filter galleries, and then you can see the color that is coming is taking from the background color. So whatever is the background, you will get some kind of an impression through that. So what happens, like, so I'm just making a foundation first of all, then we'll use them. So once you do the colored pencil, the predominantly the colors is being taken from the background color. Now these pencil width can be changed into something, the stroke pressure can be changed, and so is the paper brightness, which I can actually use it. So and then I've been applying this onto a normal image. What happens if I do onto something a little different? Let's say if I just create maybe like I changes these dimensions to like 6 inches by 3 inches or so, and then this is what I just get, and I apply a text, So let's say if I say test
and I just increase this size into this, and let's say if I make this a little dark, so I made it a black, you know, and I then apply this into, you can even merge these two together. So Control E if I do this. So I have just merged this, and then I changes these two colors, let's assume, and I make this something like this. I keep the background as a blue just to think that I'm applying something onto the colored pencil, and then I did the convert to smart filter, let's say, and then I go to the filter, and then I go to the filter gallery again, and from here I pick up this artistic colored pencil, and then I manage to make these things, setting here and there, paper brightness stuff. Okay, this is one of the ways. The another way is like, since this is a very sharp thing, one of the once I use a lot of filter, I probably be applying a blurring. तो थोड़ा सा blur कर देने से क्या होगा, that you would get some sharpness आपका हट जाएगा. So for example, I made this thing a little blurred before applying the any of these filters. These working they works more in a catalytic way. Catalytic in a sense कि ये कोई भी filter होगा उसका effect बढ़ा देगा यदि उस particular image में या उस particular layout में थोड़ा सा blur amount होगा या variations होंगे. And then I go to the filter gallery, and then I apply this thing. तो देखो वो जो blurred element था, that will play some role. So इधर तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, because this is not the kind of a filter you might be requiring to use on a text, but of course it will help you to create some kind of an effects in this thing. But of course we'll not confine ourselves to the colored pencil. Will come across to the cutout, let's say. So see, cutout में क्या हो रहा है, cutout में वो जो image है वो एक तरह से पोस्टराइज हो रही है. पोस्टराइज मतलब कि उसके जो लेवल्स हैं दे आर बिकमिंग लेस. तो जो उसकी जो डिटेलिंग थी वो डिटेलिंग कम होती चली जा रही है. अब देखो यहाँ पे हम डिटेल बढ़ा रहे हैं तो डिटेल बढ़ रही है, और लेवल्स हम कम कर देंगे तो लेवल्स कम हो जाएंगे. अब ये इफेक्ट इसमें अलग तरीके से दिख रहा है. लेकिन हम जब कोई पोर्ट्रेट यूज करते हैं, लेट्स से इफ आई टेक सम पोर्ट्रेट, so let me just take some portrait from an image, maybe let's take some image, like take this image. So this is an image, and if I apply the cutout onto this, so what I have to do, I have to convert this into smart filter first of all. Then I have to go to the filter gallery, and then I will go to the cutout and see cutout में क्या हो रहा है कि वो जो पिक्चर है उसके लेवल्स कम हो रहे हैं. तो the picture becoming more of you know, ऐसा लग रहा है स्केचिंग आर्टिस्ट वो बना रखा है. इसको हम और भी कम कर लें. देखो हम इसको और भी कम कर सकते हैं, और यहाँ पे एड सिंप्लिसिटी अभी आपके ऊपर है. आप सिंप्लिसिटी को जितनी ज्यादा कम करोगे उतने ही कम कॉम्प्लेक्स बनेगी, और जैसे जैसे सिंप्लिसिटी को कम करोगे तो आप यू कैन सेटल इट समवेयर, मे बी वेरी लेस और मे बी समवेयर इन बिटवीन. एज फिडेलिटी you want the more complexion or more smoothness, depend करेगा. So I just take this thing, and if I say okay, so the picture has become just like this. तो आपको यदि इस तरीके का पिक्चर में इफेक्ट अचीव करने हो, and why just to restrict onto this, why not actually to have two have a back to back two layers of the same thing, and then go to the filter and then say filter gallery, let's say, and apply this cutout again, and let's say if I get this result. Now what happens that you got this smart filter thing here, and आप एक तो इनफैक्ट आप इसी के थ्रू स्मार्ट फिल्टर में जाके go to the mask. तो मास्किंग में जाएंगे तो क्या होगा, कुछ फिल्टर रह जाएगा और कुछ जगह से फिल्टर अप्लाई होगा और कहीं से नहीं भी होगा. तो यू विल गेट अ डुअल इफेक्ट. सो यू वांट टू मेक अ रिवर्स ऑफ इट, आई विल से द रिवर्स ऑफ इट, एंड देन सॉरी रिवर्स अप्लाई नहीं हुआ था. हाँ, so this is what even I can do. So in certain areas the pictures will have those filters. If I have to apply directly, मैं ऐसे चलाऊं इधर पे, तो कुछ पिक्चर्स में देखो इस पिक्चर के इस हिस्से में वो फिल्टर चला है और नीचे वाले में नहीं चला है. So you can create multiple effects, and why just to restrict it onto the gradients? Why not actually to have something? So मैं यहाँ पे white fill कर देता हूँ इसको, black कर दिया गलती से, white fill कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे चूंकि ये मास्क तो आ ही रहा है तो मैं ब्रश में चला गया
और ब्रश में जाने के बाद मेरे को यदि इस इफेक्ट्स में से मेरे को आईज निकालनी है, मैं ब्लैक से आईज को बाहर निकाल सकता हूँ. सो in some of this I'll keep this impact, and so from somewhere I'll not keep it. So it depends. So the cutout can be good stuff as long as you apply. और साथ ही साथ चूंकि ये लेयर नॉर्मल है और ये लेयर मैंने अप्लाई किया, तो इन दोनों लेयर्स के साथ भी मैं बहुत तरह तरह के इफेक्ट्स भी जनरेट कर सकता हूँ इन दोनों के थ्रू, ब्लेंडिंग मोड से साथ भी. तो ब्लेंडिंग मोड विल हेल्प मी टू अचीव समथिंग maybe in some other manner, और इसकी opacity या उसको आप कम करके impression वगैरह change कर सकते हो. So that's one of the things. Another thing that there are other filters as well. So I go to the filter gallery and then apply maybe like a dry brush. So see the dry brush ऐसा लगे जैसे कोई image आप कोई पेंटिंग कर रहे हो और उसमें से आप ब्रश को हटा के ड्राई ब्रश करेंगे, तो ये पैचेस डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पे ब्रश का साइज, ब्रश की डिटेल्स ज्यादा रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं, टेक्सचर वैल्यू आप कैसे रखना चाहते हैं, and then you can settle yourself कि कहाँ पे हमारे को ये effects चाहिए है. So you can use multiple effects and then you say okay. So, and of course the smart filter thing allows you to play with the gradient, and यहाँ पे मैं gradient के साथ जाके और I can go to the reverse ऑफ कर दिया मैंने. सो मल्टीपल इफेक्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो. और मैं यदि इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करूं, तो मैं यहाँ पे ये आर्टिस्ट में मैंने लिखा हुआ है, और फिल्टर में यहाँ पे जाके फिल्टर गैलरी के थ्रू मैंने इसको क्या किया, कटआउट किया. तो देखो कटआउट में, या फिर ड्राई ब्रश कर देते हैं. तो ड्राई ब्रश में हम यहाँ पे टेक्सचर को कम कर दिया. तो यहाँ से हम लेयरिंग कर सकते हैं, या फिर कटआउट से. देखो कटआउट से वो जो इफेक्ट है वो एक अलग ही लेवल कम रखेंगे, लेवल आप बढ़ा भी सकते हो. और मान लो मैंने ये ले लिया, अब ये नॉर्मल फॉन्ट था, लेकिन अब ये फॉन्ट फॉन्ट की तरह नहीं दिख रहा है. अब ये कुछ और ही बना दिया हमने इसको, थोड़ा एक आर्टिस्टिक एक सिग्नेचर लुक दे दिया हमने इसको. अब क्या होगा, फॉन्ट तो ऐसा था नहीं, और लेकिन हमने इसको ऐसा करके, अब मेरे ऊपर है कि मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँ. तो मैंने इसको ये चीज ले ली, और अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिलेक्ट में जाके कलर रेंज करूंगा. कलर रेंज में जाके मैं ये वाला हिस्सा उठा लूंगा एक बारी, तो ये अंदर वाला, और इसको कंट्रोल जे कर दूंगा. और फिर दूसरी बारी में जाके फिर मैं लेयर, नीचे वाली लेयर में गया, और इसमें जाके मैंने इसको फिर से कलर रेंज किया, और इसके बारे में मैंने इसका ग्रे एरिया उठा लिया, ये बाहर वाला एरिया उठा लिया. अब ये मैंने इसको भी मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ. तो मेरे पास अब जो इसको मैं नीचे वाली को ऑफ कर दूं, तो देखो मेरे पास एक तो ये वाला इफेक्ट आ गया है. तो दिस इज अ वेरी आपने इसको टेक्स्ट को चेंज कर लिया, और यहाँ पे आपके पास ये वाला एरिया आ गया. तो डिपेंड करता है आप यदि इस इमेज के अंदर इसको अप्लाई करना चाहते हो या कहीं पे, तो यू नो इट कि हमारे पास ये एक बिल्कुल एक अलग तरह का इम्पैक्ट वाली जो चीज है. आप अपने नाम को, अपने किसी भी चीज को आप चेंज कर सकते हैं. सो दैट विल हेल्प यू टू हैव समथिंग वेरी डिफरेंट. आर्टिस्ट की जगह, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांटेड टू यूज माय नेम रवि, and then I increase the size of it, let's say, and then I merge these things together, and then I do the bit amount of the blur. Why blur? बिकॉज ब्लर से मेरी लेयरिंग हो जाएगी, उसमें वो एक सॉफ्ट एजेस बनने से लेयरिंग हो जाएगी. तो मैंने यहाँ लेयरिंग थोड़ी बढ़ा दी, और थोड़ी बढ़ा दी. एंड देन आई गो टू द फिल्टर, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर, लेट्स से. So I want to make you a habit to use it in that manner, and then say the filter gallery, and then you come to the driver. Like मैंने इसी पे ले लिया, देखो कटआउट ले लिया ना मैंने. लेयर यदि मेरे को लेवल्स ज्यादा चाहिए तो ये मल्टीपल एजेस भी क्रिएट कर देगा, लेकिन मैं if I'm okay with this. सो इसको हमने इस तरह से पुटअप कर लिया है. और यहाँ पे जाने के बाद अब ये मेरे को मिल गई है चीज, और अब मैं यहाँ से सिलेक्ट में जाके कलर रेंज वगैरह करके, तो मैं यहाँ पे देखो ये इफेक्ट मिला, और देन आइकॉन एक्चुअली सॉरी. सो यहाँ से हमने इसको कंट्रोल जे किया, और ऑफ कोर्स उसको फिर हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जा सकते हैं. सो यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स यूजिंग दिस टेक्निक. So this applies onto the image, this applies onto a text,
and this can be applied to lot of other places. ये एक पोर्ट्रेट है, अब इस पोर्ट्रेट को, ये फोटोग्राफ है एक्चुअली नो, तो इस फिल्टर गैलरी में जाके आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो। कटआउट के थ्रू भी आपने किया और ड्राई ब्रश के थ्रू भी आप मल्टीपल सेटिंग्स वगैरह अप्लाई करके ये आपने टेक्सचर वगैरह ऐड करके आपने इस पिक्चर को use कर लिया। तो this is looking more like a painting now. Would have been a good idea if I would have like taken the 2 copies of it and then I just मैं Alt Control F करके मैंने फिर से इसको ओके कर दिया, और फिर हम चाहें तो हम इनमें दोनों के अंदर एक ब्लेंडिंग मोड से भी मल्टीपल इफेक्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ही ऐसा था, और यहाँ पे हम डिफॉल्ट effects generate कर रहे हैं। So this is what you can do, and then I run it fast now. So अब हम और भी देखें इम्पैक्ट में, तो कुछ में इसके अंदर अब यहाँ से आपको स्मार्ट फिल्टर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, आपकी पिक्चर वापस भी आ जाएगी। और दूसरा ये है कि फिल्टर गैलरी में नाउ यू गॉट मल्टीपल नंबर ऑफ फिल्टर्स। जैसे फिल्म ग्रेन है, तो फिल्म ग्रेन जैसे नॉइज होती है, नॉइज में क्या होता है, सारे कलर्स आ जाते हैं, लाल पीले नीले हरे, मतलब पूरी कलर पैलेट के कलर आ जाएंगे। फिल्म ग्रेन में क्या होता है, जो जो ग्रेन आते हैं वो पिक्चर के ऊपर से ही आते हैं। ये एरिया बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जितनी ज्यादा कोर्स नहीं होंगे, जितनी ज्यादा स्मूथ होंगे, वहां पे इफेक्ट कम दिखाई देगा। जो एरिया थोड़े कोर्स होंगे वहां पे इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। सो आई कैन इंक्रीज द ग्रेनिंग। जैसे ग्रेनिंग मैंने बढ़ाई, हाईलाइट एरियाज में बढ़ानी है या इंटेंसिटी कैसी रखनी है, सो आई कैन जस्ट यूज एनी ऑफ दीज। एंड पिक्चर्स के अंदर थोड़ा ग्रेन्ड आप लोग चाहते हो, कोई भी पिक्चर को आप थोड़ा ग्रेन्ड चाहते हो, तो आप ग्रेन्ड देना। कोई पिक्चर की लुक एंड फील आपको चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हो। एंड देन देयर इज अ फ्रेस्को। फ्रेस्को इज अ काइंड ऑफ अ पेंटिंग। कई लोग, जो लोग पेंटिंग से जुड़े होंगे, शायद वो फ्रेस्को के बारे में जानते होंगे। तो फ्रेस्को इज अ जापानीज आर्ट काइंड ऑफ अ थिंग। तो फ्रेस्को में कोई वो शायद स्टेंसिल से कुछ करते हैं। तो ये जो कलर्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कलर्स यहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम कलर चेंज करके इनको लेके आएंगे, तो ये जब सॉरी, तो और यहाँ पे मैं फिल्टर गैलरी में जाके आर्टिस्टिक करके, यदि मैं फ्रेस्को में, अच्छा ये तो ब्लैक एंड व्हाइट से ही आता है, ओके, तो यहाँ पे आप ब्रश साइज या कोई भी चीज यूज कर सकते हो एंड ऑल, एंड यू विल गेट सम काइंड ऑफ परफेक्टिंग प्रिंट मिलती है। इसी के अंदर यदि हम पीछे चले जाएं इसके ऊपर ही, ओके, तो यहाँ पे जाके हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, फिल्टर में जाके, फिल्टर गैलरी में जाके, सॉरी, फिल्टर गैलरी में जा, सॉरी, sorry, convert to smart filter, okay, and go to the filter and go to the filter gallery and then apply this fresco painting। यहाँ से देखो, यहाँ से हमने fresco अप्लाई किया, तो अब मेरे ऊपर है कि मैं अपना impact वाला filter कैसे अप्लाई कर पा रहा हूँ। So I use multiple setting and then you can just visualize ये effect बाद में हम इसको किस level पे convert कर सकते हैं। So this is what you can do. Neon glow. I come to the neon glow. तो neon glow में क्या होगा कि यहाँ पे दो कलर हैं। एक कलर ये मैंने यहाँ से मान लो येलो कलर उठा लिया, तो एक येलो है और एक रेड है। तो मैं यहाँ पे गया फिल्टर में, और मैं यहाँ फिल्टर गैलरी में गया, तो यहाँ पे मैंने नियॉन ग्लो किया, तो देखो यहाँ पे येलो और रेड, और तीसरा कलर आ रहा है यहाँ पे ब्लू। जो आपने ब्लू कलर उठा लिया, और यहाँ पे जाके आप ग्लो का साइज आपको बढ़ाना है, तो ग्लो का साइज बढ़ा, ग्लो की ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। तो देखो कितना बढ़िया इफेक्ट आया। ये इफेक्ट किससे बना, वो लेयरिंग में हमने इसको डेवलप कर लिया। तो ग्लो का साइज आप मेंटेन कर सकते हो, ग्लो आपको कैसी चाहिए आप, सो यू कैन लाइक, सो यू कैन हैव दिस लाइक। तो यहाँ पे हमने इसको देखो ग्लो में कन्वर्ट है, तो नियॉन ग्लो का आ गया। और आपको इसमें से जो भी पार्ट चाहिए होगा, उसको पार्ट को आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई करके, कंट्रोल जे कर दोगे, देखो आप इस इफेक्ट को आपने बना लिया। तो जैसे आप कोई किडिश इफेक्ट बना सकते हो, जैसे कि इफ आई राइट समथिंग, यदि मेरे को इस इंप्रेशन के साथ कोई चीज चाहिए होगी, तो मैं क्या लिख दूंगा, लाइक लेट्स से किड्स, जैसे मैंने कोई और लिख दिया, popsicle. Yeah, so I say glow, maybe like the word glow. And then I use some relevant font. So इसको मैंने कोई relevant font उठा के यूज किया,
Do I have some my favorite fonts? Okay, all classes तो on है. Favorite font मैंने बनाए तो थे, कहाँ चले गए? So if I just use something like the glow and और इसको हमने मर्ज कर दिया और फिल्टर में जाके थोड़ा सा ब्लर कर देंगे. ओके, और यहाँ पे दो कलर आप अलग अलग रखिए और फिल्टर में जाइए और फिल्टर गैलरी में जाइए और फिल्टर गैलरी में देखो दो कलर तो आपको वहां मिल गए, तीसरा आपको यहाँ मिल जाएगा. अब ये कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो. और यहाँ पे ग्लो का साइज वगैरह आपके ऊपर है, आप कितना ज्यादा रखना चाहते हैं. मैं इतना साइज रख लेता हूँ. इसकी ब्राइटनेस मेरे ऊपर है, मैं रखता हूँ ग्लो. और ये आ गया इफेक्ट. और मैं अब इसको चाहूंगा तो मैं इसको मैंने मैजिक वॉन्ड उठाया, इसके एरिया पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया और कंट्रोल जे कर दिया इसको. तो कंट्रोल जे करने से ये इफेक्ट यहाँ पे आ गया है. नीचे वाले को पूरे का पूरा येलो कर दो. मैंने पूरा येलो कर दिया नीचे वाला कंट्रोल जे के बाद. और इसको जाके आपने इस पहली लेयर को जाके लेयर में जाके यू कैन डू लेयर स्टाइल एंड देन बेबल एंड एम्बॉस. बेबल एंड एम्बॉस करने से क्या होगा, इसकी डेप्थ वगैरह हम बढ़ा सकते हैं. तो यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लर मेथड्स. लाइक मैंने ये ले लिया ग्लो. अब ये एक हो गया. आप चाहो तो इसको एक और भी ले लिया मैंने और इसके ऊपर से मैं इफेक्ट हटा देता हूँ लेट से. और ये नीचे वाला जो है इसको पूरा ब्लैक कर दिया. और इसको ब्लैक करने के बाद आप चाहो तो इसको आप शेडो के लिए भी यूज कर सकते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे हम इसको किसी लेवल पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो this can help you to create multiple इफेक्ट्स. आप अलग अलग तरीके की चीजें बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. देखो यहाँ पे ये भी एक तरीके का इफेक्ट आप डेवलप कर पा रहे हो. इसको आप ब्लैक ब्लैक नहीं रखना चाहते, कुछ और रखना चाहते हो, so even you can change the color of this and then you can apply this. So there could be a lot of stuff you can do with a neon glow. In an image it will work like what it will. अब तो मैं यहाँ से येलो की जगह ब्लू ले लेता हूँ लेट्स से. और मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया है और फिल्टर में जाके हम फिल्टर गैलरी में गए और यहाँ पे हमने इसको नियॉन ग्लो कर दिया है. तो यहाँ पे दो कलर तो आ ही रहे हैं. तीसरा ब्लू की जगह तीसरा हम कुछ और कर देते हैं, येलो कर देते हैं लेट्स से. और यहाँ पे आप ग्लो ब्राइटनेस वगैरह चेंज करो, ग्लो का साइज आप ऊपर नीचे डेवलप कर सकते हो. एंड देन यू हैव दिस इफेक्ट. सो यहाँ पे मैं जाके और फिर मैंने बस फिल्टर गैलरी कर दिया, ये इफेक्ट आ जाएगा. ओके कर दिया. एंड देन यू कैन इवन अप्लाई सम इफेक्ट्स. इसी को ही हम ट्रीटमेंट दे देंगे. कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हमने इन दोनों को मर्ज करके भी बना लिए. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे मास्क वगैरह करके आप दोनों के इम्पैक्ट्स वगैरह भी आप डिफाइन कर सकते हो. So there could be a lot of stuff that you can create using both of these. So and of course this is what you can do. And then what? Then you can even so I go in the back and then so there's an interesting effect you can do. And then what? I can even go to the filter and I go to the filter gallery. So these are like a lot of filter, but I played around with them for a long period of time. So paint dops again is a kind of a painting. तो ये पेंट डॉप्स पे भी आप पेंटिंग्स कर सकते हो, लेकिन ये इसका इफेक्ट इमेज के ऊपर ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा. तो आप यदि फिल्टर गैलरी में जाके इसको पेंट डॉप्स करते हो तो देखो पेंट डॉप्स में ये डॉप्स आ गए थोड़े उसके ऊपर.
शार्पनेस और ब्रश साइज ये आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लाइट रफ, डार्क रफ, वाइट शार्प, वाइट ब्लरी एंड स्पार्कल्स, ये अलग अलग सेटिंग है। शार्पनेस वगैरह को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, और यू कैन जस्ट कम अक्रॉस। ये मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया। इससे क्या होगा, जब मैं इसको ओवरले करूंगा, लेट्स से अब मैंने इसको इस पे ना करके इसकी एक और लेयर पे कर दिया होता, और फिल्टर में जाके फिल्टर गैलरी करके बस ओके ही करना है, वो लाइफ टाइम सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे जाके मैं यदि इसको ओवरले करूंगा तो देखो इसके ऊपर एक ग्लो आ जाएगा इफेक्ट में, क्योंकि उसको मैंने बहुत ज्यादा ब्लरी कर दिया। तो एक जिस जिस ग्लो कैन बी यूज नाउ। एंड ग्लो आपको ज्यादा लगता है तो आप इसकी फिल ओपेसिटी को कम ज्यादा करके आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो दिस व्हाट यू कैन डू। So paint drops can be applied, and then what? You can even go to the filter, and then I go to the filter gallery and paint drops. आपके टेक्स्ट पे भी अप्लाई करके देखना, नॉर्मल इमेज में भी अप्लाई करना, और कोई फोटोग्राफ है उसमें भी अप्लाई करके देखना. So there could be a lot of effects that you can get. So is the palette knife. This is the another form of painting, palette knife painting. Even you can Google those palette knife paintings and stuff. तो ये palette knife में थोड़ा मोज़ाइक टाइप की कुछ चीज आ जाएगी। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट लग रहा है। यदि मैं अपने टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर इसको ग्लो को लगाऊंगा तो इसमें भी वो मोज़ाइक्स क्रिएट हो जाएंगे, इसका मतलब। तो मैं फिल्टर गैलरी में गया और यहाँ पे मैं पैलेट नाइफ अप्लाई करूं और स्ट्रोक साइज, देखो यहाँ पे ये मोज़ाइक्स क्रिएट हो रहे हैं। स्ट्रोक बड़ा चाहिए छोटा चाहिए वो आपको देखना है, सॉफ्टनेस चाहिए नहीं चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए सॉफ्टनेस, तो मैं सॉफ्टनेस हटा लेता हूँ। and then I can actually apply this stroke details. The stroke details at an extent is fine, and then I probably take it bigger in size. So I want these many uh, what the mosaics, and then mosaic के साथ हम what you can do the next is you can go to the adjustments and go to the threshold, and in the threshold you play with the if थोड़ा सा आपको यदि बिल्कुल sharp करना है तो आप इधर पे आ सकते हो। I don't think so I need to make this sharp, so or I can actually go and say curves and can do this thing. In case if you need to have a color on this, then what you can do, you can go to the image adjustment and go to um, the hue saturation wala part and say colorize. Once you say the colorize, then this whole black and white will become the colored, and then you can take the color of your choice using the saturation and make it a little lighter, so the black effect, too much of the effect will go away. And then you can actually take one of these colors and then convert this whole text into different with a different treatment, and so you can apply this onto the image. And so are the other things. I have to be a little fast because they are too many, otherwise we'll not be able to touch them. So थोड़ा सा आप समझते रहिए, अंडरस्टैंड करिए। आई नो इट वेरी वेल कि मैं क्या कर रहा हूँ, so you need to understand. There's something called plastic wrap. So this increases the wrap value onto the text. इस टेक्स्ट के ऊपर ये wrap मैंने क्रिएट किया है, and then so ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने उसको प्लास्टिक से थ्रू कर दिया है। So what in case if I apply it onto the text? So let's say I go to a little back and sorry, and then I say this plastic. So you can remember this, and I go and say this plastic, okay, and then I make this in red color or something. Oh, okay, and then I click onto the selection part of it. And by going to the selection part of it, I can go to the channels. Let's say go to the channels or come to the channels. Hi Ram, कहाँ गया भाई ये channel ये channel कहाँ आ गए थे, कहाँ चले गए, बड़ा मुसीबत है। So go to the channels, all right, and create a new channel. Let's say and fill up white color in this. यहाँ पे मैंने white किया और इसको मैं and selection हटा देता हूँ and filter, and I say filter gallery,
एंड फिल्टर गैलरी में जाके मैंने इसको प्लास्टिक रैप कर दिया। प्लास्टिक रैप करने के बाद मैं इसकी सेटिंग को थोड़ा सा अच्छा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने किया। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको किया है। और अब हम क्या करते हैं कि इस चैनल को, पर्टिकुलर चैनल था, सो वेयर द चैनल, चैनल्स पे जाएंगे। अरे यार, ये बड़ा परेशान करते हैं। तो चैनल्स पे जाएंगे जब हम, तो इसको हम कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब वापस हम अपने लेयर्स पे आ गए, और इस लेयर पे आने के बाद ब्लैक कलर क्यों उसका कहाँ चला गया, फिर इसको रेड कर लिया। और अभी हमने कॉपी कर रखा है चैनल, तो हम इसको लेयर में पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V करके लेयर में पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। और फिर जब ये आ जाएगा तो आप देखो इसके ऊपर कोई मल्टीप्लाई वगैरह करके आप कोई अलग अलग इम्पैक्ट भी इसका ले सकते हो। आई करो तो मल्टीप्लाई, एंड मेरे को यदि ये फालतू इफेक्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा और इस वाली लेयर में जाके इसको मास्क कर दूंगा, तो वो सिर्फ इफेक्ट इफेक्ट ही दिखाई देगा। और जब वो इफेक्ट दिखाई देगा तो आप कंट्रोल M वगैरह में जाके ये जो इम्प्रेशंस आए हुए हैं इनको थोड़ा बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। सो यू कैन इवन सी के सम काइंड ऑफ इफेक्ट हम उनको लेके डेवलप कर पा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन, आई विल रिपीट दिस अगेन। ये चैनल्स कहाँ छुप जाते हैं? कमाल है। कहाँ? तो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे इस सिलेक्शन को बनाया था, और इस सिलेक्शन को बनाने के बाद में कहाँ चला गया था, चैनल्स में चला गया था। इस वाले अल्फा चैनल को उड़ा देते हैं एक बारी के लिए। यहाँ से एक नया चैनल कर दिया था, और इसके अंदर हमने कलर डाल दिया था वाइट, और फिर इसको हमने सिलेक्शन को हटा दिया था। फिल्टर गैलरी में जाके हमने अपनी पसंद के हिसाब से अपने प्लास्टिक रैप को यूज किया था। और इसको ओके कर दिया था, इसको कंट्रोल A कंट्रोल C कर लिया था, वापस RGB में आ गए थे, कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दिया था एज अ लेयर। और विंडो में यहाँ पे जाके जब आप लेयर्स में गए, यहाँ पे जाके आपने इसका मोड चेंज कर दिया। से आप कोई भी मोड चेंज करा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इंप्रेशन आ गया। और अब मेरे को ये फालतू नहीं चाहिए था, तो मैंने कंट्रोल T इसकी सिलेक्शन में कंट्रोल शिफ्ट I करके इम्प्रेस करके लेयर 1 को मास्क कर दिया था। अब मास्क कर दो या डिलीट ही मार दो ना एक बार। तो इसको हमने ऐसे करके इन दोनों चीजों से, ये देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी इसके ऊपर आई, और इस तरह से हमने इफेक्ट गेन कर लिया। सो देखो भी मल्टीपल वेज you can have such effects, and then what else you can do। और यहाँ पे हम गए, so filter and filter gallery, and सो यहाँ पे भी आप बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ये पोस्टर एजेस हैं। पोस्टर मतलब पोस्टर इज नॉट अ पोस्टर जो दीवार पे लगाते हैं। पोस्टर इज, इन इमेज एडजस्टमेंट की टर्म पे पोस्टर का मतलब होता है लेवल्स को कम करना, लेवल्स का कम करना। ये कोई भी इमेज स्मूथ है इसलिए है कि उसमें 256 लेवल्स, जितने लेवल्स हैं उससे वो पिक्चर स्मूथ है। जब लेवल्स आप कम करते जाओगे तो जो पिक्चर है वो डिवाइड होती जाएगी। कह सकते हैं एक पेंटिंग इफेक्ट उसमें आता चला जाएगा। तो जो पेंटिंग इफेक्ट है वो अब हम पूरी पिक्चर में ना लगा के एजेस पे लगाएंगे। एजेस कौन सी चीज होती है इमेज की टर्म में? एजेस आर द एरिया जहाँ पे मैक्सिमम कंट्रास्ट होता है, उनको बोलते हैं एजेस। और एजेस पे क्या हो रहा है, पोस्टराइजेशन हो रहा है, यानी कि एजेस के ऊपर लेवल्स कम हो रहे हैं। तो जो पोस्टर एजेस के अंदर ये पिक्चर एक तरीके से
एज इंटेंसिटी आप बढ़ा दो, और पोस्टराइजेशन आपको जैसे ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ करोगे तो और लेवल्स कम होते जा रहे। तो आपने इसको यहाँ रखा। अब आप चाहो तो इमेज एडजस्टमेंट में जाके इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो। तो देखो ये पिक्चर एक तरीके का स्केच में कन्वर्ट हो गई है। तो इसको स्केच में आपने कन्वर्ट कर लिया, और अब आप चाहो तो आप इसको थोड़ा सा, आप इसका इम्पैक्ट और भी कम ज़्यादा करने के लिए आप इसके कर्व्स वगैरह की वैल्यू को या तो बढ़ाओ और कुछ को थोड़ा कम करो। तो ये ऐसा लगेगा जैसे पिक्चर जो है वो एक स्केच में कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो यहाँ पे जाके आप ये इम्प्रेशन भी इसके ऊपर जनरेट कर दे रहे हो। तो ये पिक्चर एक ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी एक बिल्कुल अलग तरीके से डेवलप हुई, और नीचे की जो पिक्चर है वो कलर्ड है ऑलरेडी। सो आप इन दोनों के ऊपर भी यदि आप स्मार्ट फिल्टर वगैरह के थ्रू यहाँ पे ग्रेडियंट प्ले करोगे तो देखो पिक्चर आधी उस तरीके की है और आधी उस तरीके की भी दिखाई दे सकती है आपको। तो दीज आर द मल्टीपल इफेक्ट्स आप जनरेट कर सकते हो पिक्चर के अंदर। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन पेंटिंग्स एंड स्टफ। अलग अलग जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो पोस्टराइजेशन ऑफ द एजेस, सो पिक्चर जो है एक पेंटिंग की तरफ कन्वर्ट होती है। जब अभी हम मॉल वॉल जाते हैं और बैठे रहते हैं ना वो पिक्चरों को स्केच में कन्वर्ट करने के लिए टाइप वाले लोग, दैट इज व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। तो पोस्टर एजेस वगैरह के थ्रू आप उसको डेवलप कर सकते हो। तो दिस व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली नो रफ पेस्टल्स। तो पेस्टल्स ये भी एक तरीके का पिक्चर के ऊपर एक पेंटिंग टेक्निक है, रफ पेस्टल्स। और रफ पेस्टल्स में आप इस टेक्निक को अप्लाई करो, कैनवस, बर्लैप्स, ये अलग अलग तरीके के टेक्सचरिंग वो हैं, सैंडस्टोन्स वगैरह, ये आप अप्लाई करो। स्केलिंग आप बड़ा छोटा करना चाहते हो, ये यूज कर सकते हो। ये इम्प्रेशन यहाँ पे ला सकते हो। बॉटम किस तरफ आप इसको चला रहे हो वो आप कर सकते हो। इन्वर्ट करोगे तो ये पिक्चर में इस तरीके के शार्प इफेक्ट्स वगैरह भी, so you can actually apply it onto the painting या कहीं पे। और ये सब टेक्निक्स यहाँ पे बनी हुई है। जैसे कैनवस है तो कैनवस जो हम लोग लाते हैं उसके उसके ऊपर लगेगा कि जैसे उसके ऊपर हमने पेंटिंग को डेवलप कर दिया हो। सो यू कैन अप्लाई इट ऑन टू द टेक्स्ट एंड ऑल, ये भी अप्लाई कर सकते हो। गो टू द फिल्टर गैलरी एंड अनदर वन इज स्मजिंग। स्मजिंग हो गई पिक्चर के अंदर। अब ये पिक्चर, ये सारे इफेक्ट आप टेक्स्ट वगैरह पे खुद अप्लाई करके देखते रहना। तो आप जितना ज्यादा इसको जाओगे उतनी ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जैसे स्पॉन्ज, आप स्पॉन्जिंग कर सकते हो पिक्चर को नॉर्मली इफेक्ट में कन्वर्ट करके। अब यहाँ पे ये आ गया। आप इसको चाहो तो मैं एक नई लेयर ही ले लेता हूँ, एक सिंपल लेयर ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे गए और फिल्टर में जाके हमने फिल्टर गैलरी में गए और इसको हम देखो स्पॉन्ज के थ्रू हम ले लिया। तो ब्रश का साइज आप छोटा रख सकते हो, बड़ा रख सकते हो, डेफिनेशंस वगैरह आप बढ़ा सकते हो, स्मूथनेस आप रखना चाहो तो मैं स्मूथन कर दिया। ये देखो इस तरीके का इफेक्ट आ गया। और इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू ले ली, और थ्रेशोल्ड में आप देखो लेफ्ट में जाके राइट में जाके कहीं ना कहीं वो ग्रे तो है ही, कहीं ना कहीं तो पकड़ेगा उनको। अब छोटे में चाहते हो बड़े में चाहते हो, यहाँ ले लिया। और फिल्टर में जाके ब्लर के जाके गॉसियन ब्लर करके थोड़ा इसको और मोटा बनाना है तो यहाँ पे कर लिया। अब ये गायब हो गया है। अब फिर एडजस्टमेंट में जाके थ्रेशोल्ड में जाएंगे तो इसका लेवल कहीं ना कहीं तो होगा। देखो इन्हीं एरियाज को मैंने अब थोड़ा बड़ा बड़ा करना शुरू कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई कैन डू एक्चुअली नो। एंड सो हम इसका इस्तेमाल, हमें कहीं कोर्स चाहिए हो या कुछ करना हो तो हम ले सकते हैं। सेलेक्ट में जाएंगे, कलर रेंज में जाके हम ब्लैक को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर देंगे तो इसकी नई लेयर बन जाएगी। फिर इसके ऊपर आप चाहोगे तो अपनी कलर डाल लोगे, है ना। तो ये मैंने इसके ऊपर ऑल्ट शिफ्ट डिलीट से कलर डाल दिया। अरे क्या हुआ, कलर क्यों नहीं डल रहा। हाँ, ये आ गया कलर। और फिर आप चाहो इसको, यदि वाटर का मैंने ड्रॉप इफेक्ट टाइप बनाया था ना, तो यहाँ पे आप ले स्टाइलिंग करके इनके ऊपर आप वो कर सकते हो।
यहाँ पे ब्लैक को हटा दो, ब्लैक की जगह एक्वा कलर का इम्प्रेशन डालो, और यहाँ पे इसको सॉफ्टनेस वगैरह बढ़ा के you can play multiple things in order to achieve. So but this all started with what? This all started with basic thing called sponge. So sponging means के आप इस picture के ऊपर you can create the filter gallery and these effects, and they can later on be highlighted or decreased with the color luminosity, and you can actually change this whole thing more like a painting. So this is what you can do. And then there's something called underpainting. There's something called watercolor. So watercolor effects इसके ऊपर आप generate कर रहे हो, and so ये watercolor effect generate हुआ. This thing can also be applied onto control Z करके हम थोड़ा पीछे चले जाएं. नहीं जा रहा ज़्यादा पीछे, अच्छा जा रहा. पर इतना भी पीछे क्या जाना, ये ग्लो जैसे था तो तो बढ़ती पे सब पीछे चला गया. बिल्कुल अच्छा जी. सो यहाँ पे हमने ये किया है, और this is what I can do. I can convert this into this and filter gallery, and then I'm going to use this water effect. But since there is no blur, it will not do anything much. So we need to add some blur into this. So I'll add some blur into this. So देखो जैसे ही हम blur add करेंगे तो multiple edges आ गई ग्रे की, और फिर then I go to the convert smart filter, or you can go to uh, filter gallery, and then you'll be applying this watercolor thing. See, I don't think so I need to have texture. Shadow intensity हम increase कर सकते हैं, और हम इसके थ्रू ये एक impression भी develop कर सकते हैं. और image adjustment threshold के साथ फिर आप चाहो तो इसमें आप ये impression बना सकते हो. आप चाहो image adjustment में जाके आप पोस्टराइज करके इसकी लेयरिंग भी कर सकते हो कि आपकी जो ग्रेज हैं वगैरह मिल हैं आपको चाहिए. सो यू कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ इफेक्ट्स यूजिंग दीज टेक्निक्स. These are all the techniques which are pertaining to the artistic nature. इसी श्रृंखला में यदि हम आगे चलें तो we can see there is something called brush strokes. Brush strokes are the ones जो artistic brushes की तरह रन होते हैं. So what do you even do actually in those things? That, for example, if I wanted to have a brush strokes, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने कोई चीज ले ली, और if I just apply something like this, and इसके ऊपर हमने इसके ऊपर एक ऐसी पे डाल लेते हैं, ब्लैक कलर हमने डाल दिया, let's say, और फिल्टर में जाके if I go to the filter gallery and if I say ब्रश स्ट्रोक्स एंड सी, यहाँ पे बहुत तरह तरह के इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं. इसमें एक इफेक्ट है स्पैटर. तो ये स्पैटर में जाए आप, एंड देन यू कैन गो टू द स्पैटर एंड से द रेडियस ऑफ स्पैटर और स्मूथनेस जैसे आपको चाहिए. मान लो मेरे को यही चाहिए, एंड देन आई अप्लाई दिस थिंग, एंड देन आई से सिलेक्ट एंड कलरिंग. यदि मैंने इसी को सब्जेक्ट के थ्रू सिलेक्ट कर लिया और कलर रेंज से कर लेते ज़्यादा, so control J कर दिया, let's say, and if I wanted to get a picture in this, so I can actually get this picture from here to there, and then say alt control G, and देखो आपने इसके अंदर you could get आपने एक ब्रश स्ट्रोक आपने यूज किया, और उस ब्रश स्ट्रोक को आप एजेस वगैरह या कोई भी चीज को बनाने के लिए यूज कर रहे हो. सो क्विक बॉर्डर्स वगैरह आपको चाहिए थोड़े, क्विक बॉर्डर्स वगैरह में आप इन सब चीज़ों का बहुत तेजी से इस्तेमाल कर सकते हो. एंड सो व्हाटएवर, आई मीन, यू गॉट दिस इमेज,
इस इमेज के ऊपर ही अप्लाई करना है. ऑल यू नीड टू डू इज टू मेक दिस अ मास्क. सो यू हैव डन अ मास्क. अब मास्क पे क्या हो जाएगा, मास्क पे ये वाला इफेक्ट जनरेट हो जाएगा. फिल्टर गैलरी एंड से स्पैटर, स्पैटर पे जाके स्पैटर और ओके कर दिया. और इसको, ये नीचे का जो इफेक्ट है इसके बीच में हमें एक नई लेयर डेवलप करनी पड़ेगी. सो देख रहे हैं. तो this is how you can quickly make any borders. You know how I made this? I did nothing. I just made a selection. या फिर मैं नाम के ऊपर करना चाह रहा था. लेट्स से मैं इस पे लिखा, इस पे लिखा कि कुछ मॉडल और यहाँ पे सेट सिलेक्शन बनाई. इससे सिलेक्शन बन गई, बस मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है. इस वाली में यहाँ और इसको मास्क कर दिया. ये लो मास्क हो गया. और जो मास्क एरिया है उसके ऊपर आपको फिल्टर चलाना है, ना कि इस पे. और इस पे जाके फिल्टर में जाके क्या कर दिया, फिल्टर गैलरी किया और ये मॉडल एरिया को हमने स्पैटर कर दिया. And say you will get an effect like this. So ये इफेक्ट आप मल्टीपल तरीके के, तो ये ब्रश स्पैटरिंग हो रही है. तो ब्रश स्पैटरिंग के थ्रू आप मल्टीपल इफेक्ट्स वगैरह आप जनरेट कर पा रहे हैं. और यहाँ पे भी आप कोई भी चीज को, नॉर्मल चीज को भी ये कर लेंगे. तो ब्रश है. और इसी तरह से there could be other effects, maybe like you can get filter gallery and then I can use the ink splatter. ये देखो इसमें कई बनी है. ये sprayed stroke है. This is also a very good one. तो sprayed stroke, आप कोई इफेक्ट जनरेट करना चाहते हो तो ये sprayed stroke इफेक्ट जनरेट हो गया यहाँ पे, है ना. अब इवन सिंपल ब्रश चलाओ और सिंपल ब्रश के ऊपर भी आप चाहोगे तो नॉर्मल ब्रश आपने चलाया यहाँ पे और इसको ऐसे लिया और यू कैन गो टू द फिल्टर एंड देन फिल्टर गैलरी एंड देन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू द स्प्रेड स्ट्रोक. देख रहे हैं आप. तो यहाँ पे आपने स्प्रेड स्ट्रोक वगैरह कन्वर्ट किया. इसका रेडियस वगैरह आप सेट कर सकते हो. तो आप अपने नॉर्मल ब्रश को भी एक स्पैटरिंग वगैरह अप्लाई करके चल सकते हो. और इमेज एडजस्टमेंट थ्रेशोल्ड आपने लिया और यहाँ पे हमने ये चीज की. सो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स जो हैं वो जनरेट कर पा रहे हैं. एंड देन when I can go to the filter gallery and then I can go to the what I can do, filter gallery and then so you can apply these effects here and there. आप देख रहे हो accented edges हैं. ये accented edges आप convert, तो brushing के आपको effect develop करने के उसमें मदद मिल जाएगी. So this is what you can do. And ink outlines and spattering and spread stroke and sumi. This is another effect that you can generate using this thing. And this is what you can do, you know. So all interesting effects can be achieved using this. And then they could be so आप अपने लेवल पे अप्लाई करके देखिए. ये बहुत अलग अलग चीजें हैं और बस इसको थोड़ा समझदारी से आप चलाएंगे और फिर बाद में आप इसका क्या यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर है. डोंट थिंक कि ये सिर्फ ऐसा काला सा कुछ हो गया. आप इसके अंदर इमेज डाल दीजिए, इसको किसी और पर्पस से आप यूज कर लीजिए. सो इवन यू कैन मेक अ ब्रश आउट ऑफ दिस. If I get something like this, even I can make a brush out of this. How will I do that? So I can actually, you know, select this whole thing and say the Control J, and यहाँ पे इसको हमने लिया और I make a selection of this and we go to the edit and say define brush. And this is your brush.
सो यहाँ पे हमने इसका नाम ब्रश स्ट्रोक रख दिया है। और अब आपने एक ब्रश जो बनाया है वो ब्रश आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और बहुत एक इंटरेस्टिंग सा ब्रश आपने बनाया। इस ब्रश की टेक्निक्स को आप ध्यान में रख के आप चल सकते हो। स्पेसिंग वगैरह आप थोड़ी सी इम्प्रूव कर लीजिए यहाँ से। साइज छोटा कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है इसी ब्रश के थ्रू। दिस इज एन इंटरेस्टिंग ब्रश। हाँ, ये हमने आपसे काफ़ी टाइम हम इस पे खर्च कर चुके हैं ब्रशिंग पे। तो आप देखोगे तो इसमें हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन मेक अ ब्रश स्ट्रोक्स अप्लाई करेंगे आप। So there could be another thing that you can go to the filter gallery and then there is something called distort. So the distort में एक तो ये diffuse glow है, looks very good to me at times because इसका glow amount बहुत अच्छा आता है। तो इसमें आप जाओगे फिल्टर में जाओगे, फिल्टर गैलरी में जाओगे और फिल्टर गैलरी में जाके आप यहाँ पे डिस्टॉर्ट अप्लाई करते हो तो डिफ्यूज ग्लो आ जाएगा। डिफ्यूज ग्लो पिक्चर के ऊपर से आ रहा है। ग्रेनीनेस को आपको कम करना है, ग्लो अमाउंट आप कम कर सकते हो। तो ग्लो अमाउंट कम कर दो। क्लियर अमाउंट यदि आपको ये आप अपने लेवल पे चेक करो इसको। सो यह भी कोई भी पिक्चर को यदि आपको पिक्चर में यदि आप कोई मेकअप वगैरह लेवल पे कोई स्टाइलिंग कर रहे हो तो यू कैन इवन कीप दिस थिंग इन माइंड। और ये पिक्चर के ऊपर इस लेवल पे अप्लाई हो गया है। अब आप देखोगे ओरिजिनल पिक्चर ये थी, ये आ गई। अब आप इन बिटवीन रखना चाहते हो तो इन बिटवीन रखने के लिए आप इसकी ओपेसिटी को भी कमजोर ज़्यादा कर सकते हो तो आपके जो ग्लोज हैं वो बढ़ जाएंगे पिक्चर में। कितना बढ़ाना है वो आप यहाँ पे देख लेना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है यदि अपने पिक्चर के ग्लो हाईलाइटेड एरियाज को आपको और भी ज़्यादा हाईलाइटेड करना है तो दिस कुड बी अ गुड थिंग टू प्ले विद, टू बिगिन विद रादर। So uh, this is what it called, लेकिन डिस्टॉर्ट जो उसका नाम है वो कहीं ना कहीं ये फिल्टर काम नहीं करता। डिस्टॉर्शन मतलब डिस्टॉर्शन भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड ग्लास। तो ये आपको ग्लास के लेवल पे चीज़ों को तोड़ रहा है। और यहाँ पे अलग अलग ग्लासेस हैं, ब्लॉक्स हैं, कैनवस है, टाइनी ग्लास है और यहाँ पे भी एक आ रहा है। ये कह रहा है लो टेक्सचर। क्या कह रहा है? लो टेक्सचर। ये तो यही है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हो। डिस्टॉर्शन, okay, all right. So something interesting to coming to my mind. So I have a low texture thing coming to my mind. So let's say if I have a low texture thing, so I come across anything. Let's say if I go to the internet and I come across any say logo, और कोई हम यहाँ से लोगो उठा लेते हैं लेट्स से। So maybe I come across with a logo like this and I just copy this logo. And then I save this. I save this as a PST file. So I say it just as a test file. And then I come back to this image. I go to the filter and say filter gallery. And so applying this, I instead of like using these four, I'll use of my own. So I say load texture and this is a test file. I have just, oh wow, तो ये फाइल के अंदर ये वाला टेक्सचर मैंने लोड कर दिया तो हमारा लोगो या हमारी कोई भी चीज
हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। द स्केलिंग यू कैन ऑलवेज, जितना ज्यादा आप इसको छोटा करोगे उतना ये पिक्चर के अंदर बड़ा आएगा या छोटा आ जाएगा। सो आई मेड स्मॉलर वंस एंड देन आई कैन इवन यूज इट लाइक, जितना ज्यादा मैं इसको करूंगा। सो दिस इज अ क्लास इफेक्ट, इसके ऊपर एक जनरेट हो रहा है। So this is what I can do. What are the another thing coming to my mind is like if I have a beach view, if I say a beach, hmm, hmm. So I take this image, let's say, or taking this one. I say copy this image. I bring this up here and I say, if I write something on this, interestingly, I write something. Uh, 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 okay. I say holiday, let's say. मैं बहुत ध्यान से इधर रख लेता हूँ इस इमेज को, राइट। यहाँ पे जाने के बाद अभी तो कहानी शुरू हुई है। सो आपको एक काम करना है, यहाँ पे ये हॉलीडेज जो आपने इमेज को रखा है ना, इसको ऑफ कर देना, बस इतना रख देना इसको, हॉलीडेज यहाँ पे हमने रखी है, इसमें से हमने इमेज गायब कर दी। और इसको आपको क्या कर देना है, इसको फाइल सेव एज कर दो और यहाँ पे टेस्ट फाइल पे ही सेव कर दो इसको। अच्छा वो खुली हुई है, फाइल सेव एज टेस्ट 2 कर देते हैं अपन लोग, है ना। ऑलराइट, एंड देन और यहाँ पे अब हम गए, और तो अब हमने यहाँ पे क्या करना, इस वाली फाइल में आएंगे और इसको एक और भी फाइल बना लो, इसकी डुप्लीकेट कर लो। और क्या करना है, फिल्टर में गए और डिस्टॉर्ट पे गए और बोला, डिस्टॉर्ट नहीं, यहाँ से गए कन्वर्ट टू फिल्टर गैलरी पे गए और हमने बोला ग्लास, और इस वाली ग्लास के अंदर हम लोड टेक्सचर, ये जो अभी अभी बनाया है हमने टेस्ट 2, यहाँ करें और इसको कितने परसेंट करना है, 100%। कितना पे, 100%। वाह, सो ये सेम जगह पे आ जाएगा 100% करते ही। और यहाँ से हम इसको अब इस 100% से पंगा मत लेना कुछ भी। और यहाँ से ये रखा है और बस आपके ऊपर है, आप छोटा चाहते हो, बड़ा चाहते हो, क्या चाहते हो। मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक टाइप का ले लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आ गया ये हॉलीडेज। और अब आप चाहते हो कि थोड़ा और प्रोमिनेंस इसमें चाहिए, तो ये हॉलीडेज ऊपर लिखा हुआ है तो कंट्रोल करके क्लिक कर दो, इसकी लेयर को ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल करके क्लिक कर लो। और कंट्रोल क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा बाहर की साइड है ना, तो इसको क्या करो, इसको भी बाहर की साइड की चीज को ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट में मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड कर देंगे इसको। एक्सपेंड करते हैं, 2 पॉइंट करें, ओ 2 पॉइंट से भी थोड़ा अभी रह गया है, तो सिलेक्ट मॉडिफाई और एक्सपेंड कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। आप इसको 4 कर लो। तो 4 में ये आ गया ना, इफेक्ट सारा का सारा अंदर आ गया।
और इसको करने के बाद इस वाली जो ऊपर वाली इमेज है इसको मास्क कर दो, मास्क कर दिया। अब आप चाहोगे तो इस वाली इमेज का थोड़ा सा, आप चाहो तो थोड़ा सा इसको कलर वलर चेंज करना है तो थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर लो। तो यहाँ पे हल्का सा आपको कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, या इसका कर लो या इसका कर लो। कंट्रोल यू से हम चाहें तो इसका हल्का सा ह्यू हल्का सा इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों में इंप्रेशन थोड़े अलग अलग दिखेंगे। लेकिन जो ये ग्लास इफेक्ट है वो कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट बैठ गया है। हम फिर से आपको समझा देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, एक बारी फिर से समझ लो। मैंने एक यहाँ पे कोई चीज नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया था, अब मैं इसका टेक्सचर बनाना चाह रहा हूँ इसी को सेम जगह के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया इमेज को, और ये वाला जो चीज है इसको हमने सेव कर लिया, S2 करके सेव कर दिया, और इसको ओके करके इस फाइल को हम रख लेते हैं अलग से। और यहाँ पे जाने के बाद हम एक और लेयर बना लेते हैं, और क्या करते हैं इसमें जाने के बाद फिल्टर, और फिल्टर में जाने के बाद फिल्टर गैलरी, फिल्टर गैलरी में जाने के बाद आपका इफेक्ट, यहाँ से आप लोड टेक्सचर करके टेस्ट 2 को पिक कर लोगे, यहाँ पे आप अपनी सेटिंग बना लोगे, और तो जो इफेक्ट है वो ग्लास का आ जाएगा। तो जो ग्लास का इफेक्ट है उसको आप ओके कर दोगे। और वैसे तो आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन आपको चाहिए तो कंट्रोल क्लिक करने के बाद आप इस वाली इमेज को, थोड़ा सा ये इफेक्ट बाहर की साइड निकला है तो आपको सिलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड भी करना पड़ सकता है, और यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट आप बाहर लेने के बाद इसको सेकंड वाली ऑप्शन को आप मास्क कर दो, कंट्रोल यू करके। आप कुछ करना चाहते हो तो आप हल्का फुल्का इसमें चेंज कर दो, and all, and then you can actually create the good effect. अब इसी में यदि हम इसी श्रृंखला में ही चलें तो यहाँ पे ये इफेक्ट भी पड़ा हुआ है, हम इसी को एक और डुप्लीकेट कर देते हैं, एक को तो बंद कर देते हैं, एक को रख लेते हैं यहाँ पे। ये हॉलीडेज हमने यहाँ से उठा लिया, ये यहाँ आ गया, कंट्रोल टी करके फ्लिप वर्टिकल कर लो इसको। ये लो जी, फ्लिप वर्टिकल कर दिया, थोड़ा ध्यान से करना फ्लिप वर्टिकल। यहाँ पे जाए गए, और इसको करने के बाद आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि एक तो ये काम कर सकते हो कि यहीं फिल्टर में ही आ जाओगे, और भी फिल्टर होते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर में जाके फिल्टर गैलरी में जाए, रास्टराइज कर लें, और यहाँ पे जाने के बाद ओशन रिपल। अच्छा, ये आ नहीं रहा इसके ऊपर, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसको मेरे को मास्क भी बनाना पड़ेगा। अब मैं करके देखूं इसको। हाय राम। हम्म और इसको आप वाइट कलर डाल सकते हो, इसको आप चाहो तो हल्का सा कलर इफेक्ट जनरेट कर सकते हो, और इसको चाहो तो अब आप इसमें ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हो। दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। The another good effect that we can actually can have is हम इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी फिल्टर होते हैं। तो इन्हीं फिल्टर्स में एक फिल्टर होगा आपका, यहाँ पे भी एक डिस्टॉर्ट नाम की चीज होती है। तो इसके अंदर हम इसको रिपल कर क्या हुआ, इसको हम कंट्रोल क्लिक करके मास्क बना देते हैं, और यहाँ पे फिल्टर में गए, डिस्टॉर्ट में गए, और रिपल करें, रिपल। हाँ, ये अच्छा है, ये थोड़ा सा रिपलिंग हमने की। देखिए मेरा, हम्म,
इसमें गए, फिल्टर में गए, डिस्टॉर्ट में गए, रिपल किया। हाँ, ये रिपल हो गया। और आप चाहो तो इसको फिर आप मास्क वगैरह कर सकते हो। रीसेट कर दिया। तो ये जो इफेक्ट है, ये यहाँ पे ये वाला इफेक्ट को हम इसकी लेयर को कम कर देंगे, तो आप ऐसा लगेगा जैसे आप उसकी एक अच्छी सी रियलिस्टिक सी शेडो भी जनरेट कर पा रहे हो उसके ऊपर। तो ठीक है, आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की। आई होप यू अंडरस्टूड। सो हो तो नहीं गए थे आप लोग कहीं, देख रहे थे? यस सर। यस सर। हाँ, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। है तो बहुत कुछ मेरे पिटारे में, लेकिन अभी बहुत बड़ा एरिया है, फिर तो शायद आपको कोई लाइफ में इतने अच्छे से नहीं बता सकता। तो ये जो चीजें हैं बहुत सारी हैं। अभी तो हम एक फिल्टर गैलरी को ही लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आएंगी, हम उस सबको कोशिश करेंगे कि जो अच्छे वाले हैं उनको ज्यादा हम अच्छे से टच करें। सो अच्छा है, आप अपने कुछ दिनों के लिए अपने आप को एक फिल्टर लूप में रखिए, लगाइए, अप्लाई करिए, देखिए यूट्यूब पे जाके कुछ और अच्छे वीडियोस, उस फिल्टर का नाम लिख के उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू देखिए। कुछ अच्छी चीज आपको समझ में आती है तो बोलिए कि मैं आप सबको दिखाता हूँ, मेरे को अपनी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा आप भी दिखाने की कोशिश करिए। सो यू बी इन अ लूप, इसी लूप में रहो कि मैम फिल्टर्स तरह तरह के अप्लाई कर रहे हैं, और जो ये मैंने बताए इन सबको भी एक बार ट्राई करके देख लेना। कुछ पूछना है आप लोगों को, कुछ और पर्टिकुलरली कुछ किसी से चीज से भी रिलेटेड? नो सर। ओके, चलिए गुड है। आप अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी असाइनमेंट्स वगैरह पे पूरा ध्यान रखें, अप टू डेट करें। एक दिन फिर हम क्लास रख के पूरे वही चेक करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इन द मीन टाइम आई एम जस्ट क्लोजिंग द सेशन। ओके, ओके सर। थैंक यू।